Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard civics lesson number 6, that is directive principles of state policy and fundamental duties. स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं इसमें सब हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे देखिए लिस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन है इस पर. स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एंड अमंग सिटीजन्स on the basis of caste, religion, race, language और gender. State shall not deny. इसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है. सो इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट पे, जो मतलब क्या गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया स्टेट वाइज, वो है सारी चीज़ें. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑन हिज ऑफ हिज लाइफ. स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टैक्सेस. कोई रिलीजियस टैक्सेस नहीं लगाया जाएगा. से यस और नो. The jobs advertised in the newspaper are for men and women both. Yes, दोनों के लिए है. Men and women doing the same work in a factory get different wages. No, एक ही wages रहता है. Government implements various schemes for the improvement of public health. Yes. State shall protect all monuments of historic interest and national importance. Yes. Tell why. आपको reason बताना है. The state shall protect all monuments of historic interest and national importance. So यहाँ पे देखिए क्या है. Because it is one of important directive principles of state policy, monuments are a part of India's rich cultural heritage, a rich source to learn history. It is our collective responsibility to protect them. A pension scheme is implemented for old people. The pension scheme is the state's way of offering public assistance to citizens who have retired from work. This ensures that the retired person can lead a comfortable life. Hence, a pension scheme is implemented for old people. Free and compulsory education has been made available to children in the एज ग्रुप 6 to 14. क्यों ऐसा है तो रीज़न बताना है. नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, so it is made available. Right to liberty now also includes right to education, and all children are entitled to get education as a fundamental right. Say right or wrong, correct and write the wrong ones. जो wrong है आपको बताना है. Okay. Not to let the national flag fall down on the ground. Right. It is our fundamental duty to respect the national flag. हमें उसे गिरना नहीं चाहिए ज़मीन पे. To stand the attention while the national anthem is playing. Right. It is our fundamental duty to respect our national anthem. To carve or paint our names on the walls of a historic place like a fort. Wrong. It is our fundamental duty to value and preserve the rich heritage of our composite culture. ऐसा जो भी हमारे जो बिल्डिंग फोर्ट्स हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स, उस पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, कुछ भी ड्राइंग वगैरह. To give lesser wages to women than to men for the same work. Wrong. Fundamental rights put restriction on the power of the government, and one of the restrictions states that the state should not discriminate between and among citizens on the basis of gender amongst the thing. To keep public places clean. Right. It is our fundamental duty to safeguard public property. Write about the following the directive principles of the Constitution and enumerated in the textbook. So first point is the state should secure adequate means of livelihood to all citizens without any gender discrimination. The state should secure equal pay for equal work for both men and women. Second point is the state should secure the improvement of public health. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली लिख पाओ इसे. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा. इससे क्या होगा, आप इजीली लिख पाओगे. अगर आपके पास डाइजेस्ट नहीं है, या फिर आपने वर्कबुक कंप्लीट नहीं की है, या फिर आपके पास नहीं है वर्कबुक, तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए लिख के रखोगे. तो जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं आंसर है उसका, तो आप उससे स्क्रीनशॉट लेके उसे लिख लीजिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द प्रोविज़न ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सबके लिए एक प्रोविज़न सारे सिटीजन के लिए, वो है यहाँ पे देखिए.
एक एक करके अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर आपको पता ही है, आपने पढ़ा ये लेसन, तो जस्ट आपको ये बताना है कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, वो मैंने यहाँ पे बताया है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा लिखने के लिए। ओके, अगर कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। 6th का आप ले लीजिए, क्योंकि आंसर्स काफ़ी बड़े हैं, आप देख सकते हो। तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए अपने नोटबुक में, वर्कबुक में। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, कंप्लीट करना है आपको ये सेंटेंस। जैसे कि देखो, ड्यू टू सिटीजन्स गेट द मोस्ट नीडेड लिबर्टी, तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शंस दिए गए 1, 2 और 3 ऑप्शन ये दिया गया है। तो ये जो हाईलाइटेड है ना, वो आपको वो आएगा आंसर, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला, इन ऑर्डर दैट, यहाँ पे भी क्या आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आएगा ये वाला फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे देखिए, वी शुड परफॉर्म ऑल टास्क, तो यहाँ पे एक्सीलेंस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए इसमें आएगा रिलीजियस टैक्सेस। यहाँ पे आप देखिए 14, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से और आंसर भी देख लीजिए, हाईलाइटेड किया है मैंने आंसर को। नेम द फॉलोइंग, नाम देना है आपको। पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स उसे बोलते हैं। इसको इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। Any two challenges faced by India after independence, establishing order, carrying out smooth administration। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे आंसर है, 5th का आंसर आप देख सकते हो। सो ये हमने पढ़ा भी है इसके पहले। इसका क्वेश्चन आप देखो, ये है आंसर इसका। आर फंडामेंटल ड्यूटी एंड डेवलप देयर दीज वैल्यूज़, ये है इसका आंसर। 1 या 2 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, तो आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको चाहिए तो। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस व्हाई वाज इट इज़ नेसेसरी, तो यहाँ पे न्यू पॉलिसी बनाई गई जो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुई। सो क्यों ज़रूरी हुआ न्यू पॉलिसी बनाना? तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंडिया था वो आज़ाद हुआ, तो उसे पूरा नेशन को एक करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो। ओके, कोई डाउट और कमेंट पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। आप क्वेश्चन देखिए रेड कलर में और आंसर आप देख सकते हो, उसके आगे आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन, ये आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और ये आपका पूरा आंसर है। आपको अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए रहेगा तो आप पूरा लिख सकते हो, अगर कम मार्क्स के लिए 1-2 मार्क्स लिए, 3 मार्क्स लिए, तो आप 1-2 पॉइंट छोड़ सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका आंसर सेकंड वाले का। सो यहाँ पे तक हमारा क्वेश्चन आंसर हमने अच्छे से देख लिया। कोई डाउट और कमेंट पूछिए। ओके।